So hello guys, very good afternoon, and this is Piyush Khandelwal, and I would be taking care of today's problem of the day session, and I hope we will be solving this problem, right? But before that, can you acknowledge if I am clearly audible to you and audible and visible to you? Can you please acknowledge a small acknowledgement from your side? Okay, thank you, Naveen, thank you very much. So we will start with right today's session. Okay. Before that, we need to see that what is the problem today. The problem seems to be quite easy, right? Okay. Uh, this is Excel sheet problem. And if I go through the problem statement, it says given a positive integer n, return its corresponding column title as it would appear in the Excel sheet, right? So what we are given is we are given a number. As you can see, if n equals to 1, we have a column A, right? So we all have seen those Excel sheets. ठीक है और एक्सेल शीट्स में हमने नंबरिंग देखा हुआ है like if I show you something here, right? Suppose this is like sheets.new. ठीक है तो अगर मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूं तो एक्सेल शीट्स हमने देखे हुए हैं एंड एक्सेल शीट में these are columns, right? These are columns A, B, C, D, E, and rows are numbered from 1 to something like these have numeric values. But if I go through the columns, ठीक है तो columns are numbered with these alphabets A, B, C, D, and after Z, if you'll see, ठीक है if I see the column after Z, it is something which is like AA. ठीक है तो Z के बाद जो नंबरिंग स्टार्ट होती है, if I'll fill these values, ठीक ठीक the new column that would be inserted if I try to insert one column to the right, ठीक है तो numbering will start from AA, ठीक है and if I again insert one column, see this is AB, ठीक so how do we get these things, right? ये numbering जो हमने start किया, ये sequence जो है A to Z, then it starts from AA, right? इस तरीके से ये sequence पूरा start होता है AA, AB, then AZ we have, after that we have BAB, इस तरीके से पूरा sequence चलता है. तो अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिर से देखता हूं, if I'll go through the problem statement again, we will see here, right? You are given a number n, which is number of column, and you have to predict like which Excel column it is going to be. So suppose here, if I'll see, in this case, if I'll see, the A is the first column, right? My first column is labeled with the number, the text A, right? Or character A. Okay. Second column is labeled with B. Similarly, we have 26 alphabets. So last 26 column will be labeled with Z. Okay. And 27th column in this Excel sheet will be labeled as AA. Right. So if I'm given the number A, 27, so my output should be 27th, the character, the sequence of character that would be representing that particular 27th column will be AA. Similarly, 28 for 28th, it is going to be AB. I hope problem statement is clear to you, right? अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि वी आर गिवन अ नंबर, ठीक है, द कॉलम नंबर, एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट द सीक्वेंस, राइट, द कैरेक्टर सीक्वेंस which is used in Excel actually or the sheets to represent that column. तो वो कैरेक्टर सीक्वेंस जो है, that sequence has to print over there. तो अगर मैं कुछ टेस्ट केसेस अगर यहां पर देखता हूं, if I try to see this, so for 51, they are giving me the input 51 for this n equals to 51, the output should be AY. This should be AY column. ठीक है. If problem statement is clear, please type +1 in the chat box. अगर आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम में हमें करना क्या है.
Please type +1 in the chat box if you got the problem, right? Let me launch a whiteboard for you, right? Where we will try to see this. Okay. Thank you very much, right? And let's try to understand this. What logic we would be developing? What like, it will it be simple modular mathematics? Like, जब मैं ऐसी problems देखता हूँ, the simple idea that comes to my mind is it going to be simple modular mathematics with the help of which I can solve? ठीक है. So I've seen this sequence, right? I know the sequence A. ठीक है, and this is B, C, D, E, F. So if I see numbers, right, it is should be 1, 2, 3, 4, 5, 6, and after that when I have Z, it should be 26. ठीक है, and when it becomes 26, after that it should be AA. So suppose AA is given to me. ठीक है, A is given to me, and the number that like for this the value has to be 27. क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए. ठीक है, now for 27 if I see this, if I want to produce AA out of 27, 27 से AA मुझे कैसे मिलने वाला है? How I'm going to get it? तो suppose because it is going to be 26 characters, क्या हम mod 26 कुछ ट्राई कर सकते हैं? Because it is again going to be a combination of these, like first I have a set of 26 characters, ठीक है, और उससे ही मेरे को प्रोड्यूस करना है. तो क्या हम mod 26 कुछ ट्राई कर सकते हैं? Can we try this mod 26? Let's try this thing. So if I have 27 mod 26, this will give me 1, ठीक है, and 1 corresponds to A, right? 1 corresponds to A. So I got 1A, right? Okay. And after that, as we do, we divide this number 27 divided by 26, right? And this will give me 1. Okay. And if I again try this 1 mod 26, I get the answer is 1, which is again a A. Okay. And now if I do 1 divided by 26, I get the number 0. So I can stop this processing. So we all have seen this modular arithmetic वाला questions आपने देखा होगा पहले. So we keep on doing mod, keep on dividing till the number is 0. And here I am getting the number 0, and I got two answers, two A's, which might give me the correct answer, right? अगर मैं mod arithmetic देखूं, तो I can get this AA. मेरे को इससे मिल गया. ठीक है, let's try on something else. अगर मैं किसी और पर ट्राई करता हूं, तो let's try this for number 53. Suppose I have a number 53 with me. 53 पर अगर मैं ट्राई करके देखूं, what will happen? 53 mod 26, first thing that will do. So 53 mod 26 will give me 1, right? 26 into 2 is 52, and 53 mod 26 is going to give me 1. And when it is giving me 1, 1 corresponds to A. This is A, right? And I can divide this number 53 divided by 26. It is going to give me 2, right? 53 divided by 26 will give me 2. Or फिर से अगर मैं if I do 2 mod 26, this gives me 2, right? Which is corresponding to B. And if I do 2 divided by 26, right? And here the answer is going to, here I am going to stop. ठीक है, तो मैंने देखा, I saw this for 27, I gave 27, I got two A's. When I did it for 53, I got a A and B. Now the sequence, what sequence it is going to be, whether it is going to be AB or it is going to be BA. Tell me,
For 53, it is going to be AB or it is going to be BA. I got two characters, A and B. For 53, whether it's going to be AB or it's going to be BA. Tell me. 53, I got A first and B first. So the output should be the output that I am giving, like my program should produce, shall it be AB or it should be BA? For 53. Yes, guys, waiting for your responses. It should be BA, right? It should be BA. So what I need to do, I need to understand one thing. I need to, so whatever characters I'm getting, right? I'm getting A first, I'm getting B later on. Okay, I need to reverse the order of output that I'm getting. Okay, so I could do, I can store them in an array or a list, right? I can store them as a string, I can reverse the string. Okay, and when it comes to reversing something, the idea of recursion also comes to my mind, right? The order in which I'm processing, okay, and I need to print in reverse, I can make use of recursion also in that case. ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है. This solution, this approach is giving me answers, but let's try. क्या मतलब, is this the correct solution? Will work in all the cases. ठीक है, ये समझना जरूरी है. तो अभी मैं आपको बताता हूं एक केस, which is the case of Z. ठीक है, in case of Z, if I see my encoding, ठीक है, Z has the value 26, right? And if I do mod 26, so suppose I'm given the number 26, I do mod 26 over there. Okay, I'm getting value 0 for it. Okay, 26 mod 26 is giving me 0. So if it gives me 0, my encoding scheme is not defined for 0. If you'll see, my encoding start from 1, I've assigned 1 to A and 26 is for Z. So I'm given of some number N, and if it mods come, if I do mod 26, if it comes out to be 0, okay, I don't have any specification over there, right? I don't have any mapping over here. But in case of Z, if it is Z, right, the number is going to be 26 in that case, and 26 mod 26 is going to be 0. ठीक है, तो 26 वाले केस में we stuck. This approach is not going to work in the case of 26, right? तो अगर मेरे पास है suppose AZ, ठीक है, if I have AZ, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम अगर देखूं मैं कौन सा होने वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम होने वाला है 52. ठीक है, तो वी आर थिंकिंग इन रिवर्स, राइट? वी आर थिंकिंग इन रिवर्स. ठीक, तो इफ आई एम गिवन 52, am I able to produce AZ out of it? इसको देखते हैं जरा. So if I'm given 52, will I be able to produce AZ? Let's see this. 52 mod 26, it gives me 0. And for 0 I have not defined anything. ठीक है, मैंने कुछ भी अभी डिफाइन नहीं किया है, तो my program will stuck. I need to think of this case, right? Suppose 0 stands for Z, मैं 0 Z के लिए असाइन कर देता हूं. ठीक है, then I do 52 divided by 26, this will give me 2. ठीक है, and if I do 2 mod 26, this will give me 2 again, और 2 के corresponding the value is B. तो अगर मैंने 0 मान भी लिया, if I'm assumed that 0 के corresponding मेरा Z है, तो again I'm getting this value 2 over here. देखो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 2 के corresponding क्या है यहां पर, we have the value B. तो मेरे हिसाब से my program will give me the output as BZ.
बट जो लॉजिक अभी हमने डेवलप किया, जो लॉजिक अभी हमने बनाया, ठीक है, कि हम मॉड 26 करेंगे, डिवाइड बाय 26 करेंगे और करते रहेंगे, जब भी कोई कैरेक्टर मिलेगा तो उसको हम मैप कर देंगे और अज्यूम कर लेते हैं कि जीरो वाले केस में इट इज गोइंग टू बी जेड, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो it is giving me bz instead of az. It should have been az, but it is giving me bz. ठीक है, this approach is failing over here, right? I hope you guys get this, right? इतना समझ में आ गया कि मैंने ए जेड 52 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए था, ए जेड मिलना चाहिए था, बट मेरी जो अप्रोच अभी काम कर रही थी ए के लिए, बी ए के लिए काम कर रहा था, इट इज फेलिंग ऑन ए जेड, इट इज फेलिंग ऑन 52, विच फॉर विच द आउटपुट शुड बी ए जेड, बट इट इज गिविंग मी बी जेड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि दिस अप्रोच इज नॉट वर्किंग फॉर दिस। किन केसेस के लिए एक अप्रोच काम कर रहा है, किन केसेस के लिए एक अप्रोच काम नहीं कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इतना समझ में आ रहा है कि क्यों ये अप्रोच फेल हो रही है। प्लीज टाइप +1 इफ यू गेट दिस, राइट। Please type +1 if you get this, that this approach is working for certain cases, but for which case it is failing. If you have Z in your in output, it might not give you correct result. But for all other cases, it is working fine. Please type +1 if you get this. Hurry up guys, waiting for your responses. अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट, अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्यों ये काम नहीं करने वाली या किस केस में ये अप्रोच काम नहीं करने वाला, इफ यू गेट दिस आइडिया, तो मैं आपको ना फिर उसके बाद व्हाट आई डिड इज हाउ आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज, उसके बाद आई क्रिएटेड दिस एक्सेल शीट, राइट। ठीक है, हियर सी this is 1 and my output should be A corresponding to it. ठीक है, this is 2, my output should be B corresponding to it. ठीक है, so I created an Excel sheet and let me figure out where I'm failing and what I can do in this case. So if you all can see this Excel sheet, ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है एक्सेल शीट में, तो मैंने क्या किया है, देखो पहला जो रो है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड दिस रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर कॉलम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड दिस सी जो मैंने बनाया, ये आप यहां फॉर्मूला देख सकते हो, इट इज आई एम डूइंग द नंबर मॉड 26, ठीक है। तो इफ आई एम डूइंग 1 mod 26, आई एम गेटिंग 1 as the output. If I'm doing 2 mod 26, I'm getting 2 as the output. Similarly, for last, I'm getting 26 mod 26. Here I'm getting 0. For everything else, it is working fine, but for Z, it is giving me 0. The one idea that comes to my mind is, can I do it mod 27? ठीक है, कैन आई डू इट mod 27, विल इट हेल्प? ठीक है, तो एक आइडिया तो मेरे दिमाग में ये आता है। दूसरा अभी पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम अगर हो रही है और क्या उस प्रॉब्लम को हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो देखिए, और ये जो कॉलम आप देख रहे हो, मैं एक रो इंसर्ट कर देता हूं पहले यहां पर, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग नम मॉड 26, ठीक है। और फिर मैंने अगर उस नंबर को डिवाइड किया है 26 से, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नम डिवीजन 26, ठीक है। तो 1 से लेके 25 तक इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। फॉर 26 वी नीड टू फिगर समथिंग आउट। यहां पर ये 0 दे रहा है और नंबर को कर रहा है अभी 1, देखो, ठीक है। इट शुड हैव बीन 0, अगर ये 0 था तो इसके बाद नंबर खत्म हो जाना चाहिए था। इट शुड हैव बीन 0 इन दिस केस, बट इट इज गिविंग मी 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं 27 से, देखो 27 से अगेन दिस इज नम, ठीक है, दिस इज नंबर,
और 27 के करस्पॉन्डिंग आई शुड गेट आउटपुट एस ए, ठीक है ना। 27 मॉड 26 गिव्स मी 1, ठीक। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं, 27 मॉड 26 गिव्स मी 1, ठीक है, तो वो ए के करस्पॉन्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 27 डिवाइडेड बाय 26 ऑल्सो गिव्स मी 1, तो यहां पर मुझे ए मिल जाएगा, इसको मैं देख के समझ सकता हूं, ठीक है। दूसरा नंबर भी ए ही मिलेगा। अगर मैं देखूंगा तो ये मॉड 26 वाला इस थिंग इज वर्किंग ऑन इट, ठीक। अब देखते हैं, देखिए बी एक वाली सीरीज के लिए यहां पर नंबर है 53। 53 मॉड 26 जब मैं करता हूं तो मुझे मिलता है ए, लेकिन मैं 53 डिवाइडेड बाय 26 करता हूं तो मिलता है 2, तो मेरे को बी ए भी मिल रहा है यहां पर। तो ये चीज जो अभी हमने किया था वो हम यहां पर देख सकते हैं, इट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो 54 के लिए आई एम गेटिंग 2 तो बी भी बिल्कुल सही मिलेगा। ऐसे देखते हैं 59 के लिए, देखो 59 के लिए आई गेट 7 2 विच इज अगेन, तो 7 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो 7 के करस्पॉन्डिंग वी हैव जी, राइट। तो वी गेट बी जी ओवर हियर। रिवर्स में देखना है आपको इसको, तो 7 2 मतलब 2 वाला बी एंड 7 वाला जी, राइट। वी विल गेट दिस एज आउटपुट, ठीक है। तो फॉर एवरीथिंग इट इज वर्किंग फाइन। अगर मैं बी यू के लिए देखता हूं, 73 के लिए देखता हूं, फॉर 73, राइट, फॉर 73 इफ आई सी आई गेट 21 एंड 2 एज आउटपुट। तो देखिए 2 स्टैंड्स फॉर बी एंड 21 स्टैंड्स फॉर यू, तो आई गेट बी यू एज आउटपुट, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज वर्किंग फाइन इन दीज केसेस, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो एक केस मेरे जो फेल हो रहे हैं वो हो रहा है बी जेड वाला। बी जेड वाले केस में अगर मैं देखता हूं, आई एम गेटिंग 0 3 एज आउटपुट। तो 0 3 मतलब 3 स्टैंड फॉर सी, राइट। तो इट इज गिविंग मी सी और 0 इज अनडिफाइंड अभी मेरे लिए, ठीक है। ऐसे देखते हैं ए जेड के लिए, देखो तो इट इज गिविंग मी 0 2, ठीक है, 2 स्टैंड फॉर बी। अगर मैं 0 को एज्यूम कर लूं, इफ आई एज्यूम 0 पे जेड आएगा, ठीक है, और यहां पर 2 जो है, ठीक है, 2 जो है इसकी जगह 1 होना चाहिए था। अगर 1 होगा तो थिंग्स विल वर्क फाइन, ठीक। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, 0 अगर z है और यहां पर 3 की जगह अगर 2 होता तो इट वुड हैव वर्कड फाइन। इफ इट वुड हैव बीन 2, यानी कि आई एम गेटिंग 3, 3 माइनस 1 इज 2। देखिए हर जगह ना आई एम गेटिंग 1 मोर वैल्यू, ठीक। सिमिलरली फॉर z, इफ दिस वुड हैव बीन 0, आई वुड हैव सेड 0 को हम कर रहे हैं 0 इज z, ठीक है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं 0 इज z, तो आई विल गेट z एज आउटपुट एंड दिस शुड हैव बीन 0 इन दैट केस आल्सो। तो 1 माइनस 1, आई एम गेटिंग 1 मोर वैल्यू इन केस ऑफ z, ठीक है। तो अगर देखो मैं आपको अब नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग टू अंडरस्टैंड, इफ यू गेट, चले मैं यहां पर समझते हैं इसको, लेट्स सी। तो व्हाट विल डू, वी विल डिवाइड, वी विल, सो आई एम गिवन अ नंबर नम, ठीक है, तो आई विल डिवाइड दिस नंबर, आई विल प्रिंट कैरेक्टर equals to num mod 10, sorry 26, it has to be 26, right? So num mod 26 will give me some value, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक। लेकिन if this character is z, या एक सेकेंड, लेट मी डू इट अदर वे। ठीक है, तो आई एम गिवन सम नम, राइट, मेरे को कोई नंबर गिवन है, ठीक है। नाउ what will I do? I'll find out the remainder first. Remainder that will correspond to num mod 26, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं रिमाइंडर निकाल लेता हूं और रिमाइंडर निकालने के बाद क्या करता हूं, चेक करता हूं इफ दिस रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो मेरे को क्या करना है,
मेरे को बोलना है, प्रिंट करना है या अपना रिजल्ट में z ऐड कर देना है। ठीक है, रिजल्ट में क्या ऐड कर देना है, z ऐड कर देना है। और जो नम है अभी, जो ये नम है, जो नया नंबर बनेगा, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू, और जो डिवीजन करूंगा, नंबर डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1 कर दूंगा इसमें से। आई डू इट दिस वे। ठीक है, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, नंबर रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर नॉर्मल है, तो मैं रिजल्ट में क्या ऐड करूंगा, ठीक है, आई विल फाइंड आउट द कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग टू रिमाइंडर, राइट। कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग टू रिमाइंडर, मैं रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग कोई जो कैरेक्टर होगा, वन होगा तो ए होगा, टू होगा तो बी होगा, वो रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर निकालूंगा, उसको रिजल्ट में ऐड करूंगा, और नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 26 करूंगा। और ये कब तक करूंगा, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग, राइट, while number is greater than 0. I'll do it this thing. Can I do it this way? क्या मैं ये कर सकता हूं? देखिए, एक छोटा सा हमने एल्गो बनाने की कोशिश किया है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो सपोज हम बात करते हैं सबसे पहले सपोज 29 के लिए, ठीक है, 29 29 के लिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। 29 इज ग्रेटर देन 0, यस। रिमाइंडर इक्वल्स टू 29 मॉड 26, 29 मॉड 26 क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर विल बी 29 mod 26, this will give me 3, ठीक है। और 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है हमारा कैरेक्टर, अब देखो 3 है, रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर 0 है, नहीं है, रिमाइंडर मेरा नॉन जीरो है, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, अब मैं क्या कर दूं, इस कैरेक्टर को ऐड करूं, 3 के करस्पॉन्डिंग ए बी सी, राइट, इट इज गोइंग टू बी सी, तो मैंने अपने रिजल्ट में सी ऐड कर दिया, ठीक है, रिजल्ट में क्या ऐड कर दिया, सी ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, और नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय, तो नंबर हो जाएगा नम इक्वल्स टू 29 डिवाइडेड बाय 26, दिस विल गिव मी 1, ठीक है। नाउ इफ आई डू इट अगेन, नंबर अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो व्हाट विल आई डू, आई डू रिमाइंडर इक्वल्स टू 1 mod 26, दिस विल गिव मी 1, और 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्या है, ए, तो हमने रिजल्ट में ऐड कर दिया ए सी, ठीक है। और लास्ट में मुझे क्या करना है, ऑर्डर रिवर्स करना है, तो अभी पहले देख लेते हैं नम हमारा, अब नम क्या हो जाएगा, नम इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 26, दिस विल गिव मी 0, ठीक है। और 0 पर आते ही मैं इस लूप को स्टॉप कर दूंगा, रिजल्ट में सी ए है, इस रिजल्ट को मेरे को रिवर्स में प्रिंट करना है, तो आई विल हैव ए सी एज द आंसर। तो इफ विल सी फॉर 29 वी हैव ए सी और नॉट, फॉर 29 लेट्स सी, for 29C, the answer is AC. ठीक, so this approach is working fine. अब मैं लेता हूं एक केस 52 का, सपोज, तो अज्यूम करते हैं कि नम इक्वल्स टू 52, ठीक है। विल दिस अप्रोच वर्क इन दैट केस और नॉट, तो नंबर इज ग्रेटर देन 0, यस, रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉड 26, तो 52 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 52 मॉड 26, आउटपुट विल बी 0, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट 0 आता है तो रिजल्ट में क्या ऐड करना है मेरे को, रिमाइंडर 0 आता है, रिजल्ट में क्या ऐड करना है, रिजल्ट में ऐड करना है, दिस इज नाउ गॉन, ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू जेड, रिजल्ट में जेड ऐड कर देना, एंड नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 26 माइनस 1, तो नंबर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, जब z आता है तो नंबर को एक कम करना है हमें उसमें, ठीक है। तो
52 डिवाइडेड बाय 26, इसका आंसर क्या, -1। इसका आंसर क्या मिलेगा, we'll get 2 minus 1, that is 1। 52 divided by 26 will be 2, minus 1 is 1। ठीक है, so now we have number equals to 1। 1 is greater than 0, yes। तो मैंने क्या किया, रिमाइंडर निकाला फिर से। रिमाइंडर विल बी 1 mod 26। 1 mod 26 is going to be a, मतलब it is going to be 1, and 1 के corresponding character is a, right? And num equals to num divided by 26। तो 1 divided by 26, this will give me 0। ठीक है, तो a is appended to the result and I have to print the result in reverse। this is going to be az। तो आप देखिए 52 के corresponding whether I get the answer az or not। For 52, see this, for 52 we have answer az। समझ में आ गया। सो दिस अप्रोच इज गोइंग टू वर्क। ये जो अभी हमने हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको फिर से, दिस अप्रोच इज गोइंग टू वर्क फॉर दीज केसेस, राइट। ये जो अभी हमने बनाया पूरा लूप, दिस विल वर्क। ठीक है, अग्री। इफ यू अग्री विद दिस प्लीज टाइप +1 इन द चैट बॉक्स। अगर आपको समझ में आता है प्लीज टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। आप टाइप करो अग्री, चैट करो अग्री, टाइप करो चैट बॉक्स में एवरीवन। अगर समझ में आ गया कि ये अप्रोच काम करने वाली है, हमने डिड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को कि क्यों हम z के केस में नंबर डिवाइडेड बाय 26 करने वाले हैं। ठीक है, प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स और थम्स अप, कुछ भी आप दे सकते हो चैट बॉक्स में अगर आपको समझ में आता है कि ये जो लॉजिक है काम करेगा। हरी अप गाइस, हरी अप। You can give a thumbs up or type agree in the chat box if you think that this algorithm is going to work। चले, नाउ वी विल बी कोडिंग दिस इन पाइथन। ठीक है, हम पाइथन में इसको कोड करेंगे और उसके बाद जो है वी विल सी वेदर वी आर एबल टू सॉल्व इट करेक्टली, वेदर दिस अप्रोच पासेस ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपको चीजें समझनी है कोड करते वक्त, इसको मेरे को यहां पर मैं पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूं एज अ लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद लेट्स सी, मेरे को n गिवन है। ठीक है, और मेरे को लूप चलाना है while n इज ग्रेटर देन 0। जब तक n 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलाना है। अगर मैं इसी कंडीशन को देखूं, ठीक है, तो मेरे को रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर इज गोइंग टू बी num mod 26। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, num mod 26। उसके बाद मेरे को चेक करना है कि इफ रिमाइंडर इज 0, तो मैं क्या करूं, आई नीड टू डू समथिंग, मैं अपने रिजल्ट में z ऐड कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास सपोज कोई रिजल्ट है यहां पर, आई डू हैव अ रिजल्ट ओवर हियर। ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग मैंने लिया इसको। ठीक है, नाउ num इक्वल्स टू num डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, नंबर को n इक्वल्स टू n, इंटीजर डिवीजन के लिए वी हैव दिस डबल स्लैश 26। ठीक है, -1। so this is how the number will be reduced, else
अगर ऐसा नहीं है, नंबर रिमाइंडर अभी 0 नहीं है, तो मैं रिजल्ट में वो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ऐड कर दूं, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, मेरे को उससे करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर निकालना पड़ेगा, वो जो भी रिमाइंडर आया है, ठीक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी इसको हम करेंगे कि कैसे करने वाले हैं इसको, मैं कमेंट्स में लिख दे रहा हूं, रिमाइंडर, ठीक है, मैंने ये निकाल लिया। इसके बाद नंबर इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 26, और इस केस में मुझे करना है n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 26 इस केस में, ठीक है। एंड at last, while this loop is after this loop is over, I need to return the result, ठीक है। लेकिन रिजल्ट कैसे करना है, रिवर्स में रिटर्न करना है। तो इन पाइथन वी हैव समथिंग लाइक वी विल रिटर्न द रिवर्स ऑफ दिस, सो व्हाई वी आर डूइंग, वी आर रिटर्निंग द रिवर्स स्ट्रिंग, राइट। तो मैंने रिजल्ट का रिवर्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली चीज जो है वो ये है कि ये जो कैरेक्टर मैपिंग है, ये मैपिंग हम कैसे करेंगे, ठीक। तो कैरेक्टर ऐड करने का, या तो मैं, मेरे पास जो तरीका है, मेरे पास, जैसे मैं यहां पर करूं, एक तो तरीका, जैसे सपोज आपको कोई नंबर गिवन है 1, ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग आपको ए चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, सपोज यू कैन गेट 1 माइनस ORD ऑफ ए, ठीक है। तो दिस विल गिव मी 1 माइनस 1 0, ठीक है। ओके, so this will be a number, right? Any number if you given this number minus ORD of A. तो ये डिफरेंस दे देगा आपको उसका, और उसके बाद आपको उसको किस में ऐड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ऐड इज ORD of A sorry, what we can do is we can do it simply, right? तो if I am getting the result 1, ठीक है, तो मेरे को उसमें क्या करना है, ORD how can we do it, right? I need to produce 65 out of 1, right? 1 से मेरे को 65 प्रोड्यूस करना है, ठीक है। एंड 65 जो वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज और 2 से मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है, 66 प्रोड्यूस करना है। तो आई हैव टू ऐड 64 इनटू इट, ठीक है। तो जो भी नम होगा, नम प्लस 64, और इसकी जो है मैं CHR वैल्यू निकालू, कैरेक्टर वैल्यू निकालू, ठीक है। तो आई कैन डू इट दिस वे, CHR ऑफ नम प्लस 64 आप किसी में भी ऐड करोगे, तो यूल गेट दैट पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, ABC जो भी आपका कैरेक्टर है वो आपको मिल सकता है। एक तो तरीका मेरे पास ये है, ठीक है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं एक एरे ले लेता हूं इस तरीके से, आई स्टोर ए ओवर हेयर, यहां पे मैंने, यहां पे ब्लैंक कर दिया, 0 को मैंने ब्लैंक कर दिया, 1 पर ए, 2 पर बी, 3 पर सी, ठीक है, एंड 4 पर डी, इस तरीके से स्टोर कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने स्टोर किया, और अब जो भी मेरा रिमाइंडर आता है, सपोज मेरा रिमाइंडर आया 2, तो मैं इस टेबल में 2 पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसको फेच कर लूं, सीधे बी मिल जाएगा मेरे को। तो मैं एक इस तरीके की टेबल बना सकता हूं विच विल हेल्प मी टू, तो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाते हैं हम, यहां पर देखिए। तो आई क्रिएट अ टेबल लाइक दिस, टेबल इक्वल्स टू, अब या तो मेरे पास एक तरीका है, यहां पर मैं इस तरीके से टेबल बनाऊं, ए
बी, ठीक है, एंड सी, इस तरीके से टेबल बनाओ, ठीक है, और ये पूरा जेड तक बनाता रहूं। या फिर आई कैन यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो आई कैन यूज सी एच आर ऑफ, आप देखेंगे मैं आपको बता दूंगा टेबल कैसे प्रिंट बनती है, कैसे प्रिंट करता है टेबल को, ठीक है, सी एच आर ऑफ एक्स फॉर एक्स इन रेंज 65 कॉमा 65 प्लस 25 या 26 ले लेते हैं अभी, देखिए इसको। तो 65 से लेकर के मेरे को नहीं पता कि लास्ट वैल्यू जेड की स्काई वैल्यू क्या होता है, मेरे को ए का पता है, तो मैंने 65 से लूप चलाया, 65 से लेके 65 प्लस 26 तक ये लूप चलाया, ठीक है, लूप चलेगा और हर एक के करस्पॉन्ड, हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा उसको मेरी लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। तो आई कैन शो यू ओवर हेयर इफ यू वांट टू सी ये कैसे काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए, लेट मी ट्राई दिस। तो अगर मैं एक टेबल बनाता हूं, टेबल, ठीक है, इक्वल्स टू लिस्ट, यहां पे मैंने लिखा सी एच आर ऑफ एक्स फॉर एक्स इन रेंज 65 से लेकर के 65 प्लस 26 कैरेक्टर्स होते हैं, यहां से यहां तक कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इफ आई प्रिंट द टेबल यू विल सी अ टेबल फ्रॉम ए टू जेड इज क्रिएटेड। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, 65 से लेकर के दिस लूप इज रनिंग टिल 91, ठीक है, और वहां से वहां तक जब ये लूप चल रहा है तो ये मुझे इंटीजर वैल्यूज दे रहा है 65, उसके करस्पॉन्डिंग में कैरेक्टर एलिमेंट जो है उसकी एक लिस्ट बना रहा हूं, कैरेक्टर एलिमेंट्स उनको मैं ऐड कर रहा हूं। तो ए बी सी डी, फिल सी द लिस्ट ऑफ लिस्ट लाइक दिस इज क्रिएटेड, ठीक है। इफ आई राइट दिस सिंटेक्स, दिस लिस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, ठीक। तो अगर देखो, now instead of adding this corresponding remainder, what will I do? I'll add this table और यहां पे रिमाइंडर। तो उस टेबल में से उस करस्पॉन्ड अगर वैल्यू 1 आएगा तो ए फेच कर ले। अभी देखिए ये जो टेबल बना है, लेकिन इस टेबल में गड़बड़ क्या है, इसमें जीरो इंडेक्स पर जो है ना ए है, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 1 इंडेक्स पे चाहिए, ए 1 इंडेक्स पे चाहिए, तभी मेरा लॉजिक बिल्कुल सही चलेगा। रिमाइंडर 1 होगा तो टेबल आएगा, मतलब ए आएगा, रिमाइंडर 2 होगा तो दिस विल ब्रिंग बी, दिस शुड हैपन दिस वे, ठीक है। लेट मी इंक्रीज द कोड फॉन्ट साइज, ठीक है, आई होप नाउ दिस इज विजिबल, राइट। ठीक है, तो नाउ इज द कोड विजिबल। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन इज आई एम generating these characters out of this table, I'm getting these characters out of table। तो मैंने वो टेबल जो बनाया है उसको मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस टेबल में a इज एट जीरोथ इंडेक्स, अभी इस एरे में जीरोथ इंडेक्स पे। व्हाट डू आई वांट दिस a टू बी एट फर्स्ट इंडेक्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन इंसर्ट सम रैंडम वैल्यू ओवर हियर, ठीक है, टेबल डॉट इंसर्ट जीरोथ इंडेक्स पे आई कैन पुट समथिंग, सपोज let me put some empty string, ठीक है, at zero index। Now if I'll see my table, you will see a has come to first index, ठीक है। Now I need to insert something at zero index, मैंने एक blank string एंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए टेबल बन चुका है, यहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, तो आई विल डू दिस थिंग कब तक, जब तक n ग्रेटर देन जीरो है, रिमाइंडर इक्वल्स टू n नॉट 26। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं,
ठीक है, एंड इफ रिमाइंडर इज जीरो, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू जेड एन इक्वल्स टू एन नॉट 26 माइनस वन, एल्स रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू टेबल ऑफ रिमाइंडर। तो इस टाइम पे मैं टेबल कहां से, रिमाइंडर कहां से, वो कैरेक्टर कहां से ले रहा हूं, टेबल में से निकाल रहा हूं, ठीक है। एंड n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 26, एंड एट लास्ट आई एम रिटर्निंग द रिजल्ट इन रिवर्स। ये जो मैंने लिखा है कोलन कोलन माइनस वन, ये क्या करता है, मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सपोज आई हैव हेलो, ठीक है, एंड इफ आई डू हेलो कोलन कोलन माइनस वन, this reverses my string. If I have any string, I can reverse it by this index, this slicing operator. ठीक है, तो टेबल कैसे बन रही है वो मैंने आपको समझाया, स्ट्रिंग रिवर्स कैसे हो रही है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। नाउ लेट्स वेरीफाई, ट्राई टू कंपाइल आवर कोड एंड लेट्स सी वेदर इट इज गिविंग मी करेक्ट रिजल्ट्स और नॉट। Okay, so here it is giving me some like list indices must be integer, not float. So this has to be when I'm performing division. So in C, C++ or Java, if you divide and if both the operands are integers, right? The result is an integer. But in Python, what happens when you do this single division, the answer is always a float value. But when you do double division, it is integer. The answer is an integer. So I need to have integer result. So I put a double slash so that I get the integer result out of division. Now if I run this, see, for input 51, output should be AY, and my output is expected output is also AY, and our output is also AY. So this approach is working fine, right? This code is working fine, but we can make certain improvements out of it. ठीक है, अब वो इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, देखो, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, अगर आप देखो यहां पर रिमाइंडर जब जीरो है तो मेरा क्या रिजल्ट में क्या अपेंड होना चाहिए, z अपेंड होना चाहिए, ठीक है। और हमारी जीरो इंडेक्स जो है वो भी खाली है, सी, जीरो इंडेक्स में कुछ भी नहीं रखा है हमने, हम वहां पर फोर्सफुली z अपेंड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू भी मैं टेबल से ही फेच कर सकता हूं, आई कैन फेच दिस वैल्यू आउट ऑफ टेबल ओनली, अगर मैं टेबल में जीरो इंडेक्स पे z पुट कर दूं। यहां पर देखो, टेबल में मैंने जीरो इंडेक्स पे z पुट कर दिया, तो मेरी टेबल कैसे बन जाएगी, z a b c d, इस तरीके से द टेबल वुड बी लाइक दिस, z इट विल स्टार्ट फ्रॉम z, it will have z at zeroth index, ठीक है, and then it will have a at first position, b at second position, like this. If you see, if I put table dot insert z at, oh sorry, at zero position we will put z. Now my table will be something like this. Oh, I have to remove this, right? My table will be something like this. If I insert z at zeroth position, so instead of forcefully adding z, I can fetch this z also out of my table only. So I need to remove this thing and I take it, put it out of the loop. I'm not worried about, now you see, I'm not worried about what the remainder is. Okay. If it is 0 or non-zero, I'm fetching the value out. If it is 0, I'm adding z to the result, because at 0th index I have z. If it is 1, I'm adding a to the result. If it is 2, I'm adding b to the result. I hope you all agree with this. Is this understandable? So I am fetching all the values out of my table only. Okay. I am not writing explicit code for z. Okay. Now if remainder is 0, I am doing n equals to n divided by 26 minus 1. अभी हमने देखा था, in case of z we have to take one lesser value. In case of any other value of, like in case of any other alphabets, it is going to be n divided by 26. ठीक है. Now if I'll
Try to submit this, see whether still I'm getting the same results or not. The program output is still the same, right? It is not changed. Okay. Now if I try to submit this, क्या submit कर दे इसको? If you think this solution is going to work, I'll submit. Okay. Please type submit in the chat box. I'll submit it and let's verify whether it works for all the test cases or not. आप submit लिख दीजिए टेक्स्ट चैट बॉक्स पे, मैं सबमिट करता हूं इसको जल्दी से. हरे अप एंड विल सी आवर अप्रोच इज वर्किंग. अभी इस अप्रोच में कोई दिक्कत लग रही हो तो आप यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. मैं भी क्लियर कर देता हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन. ठीक है. And if you want me to submit, please type submit in the chat box. We will submit it and try to see whether it fulfill all the test cases, whether it works on all the test cases or not. Please, guys, waiting for your responses. Okay. Thank you, Shubham. Thank you. Thank you very much. Okay. Let me submit it, right? See, it passes all the 400 test cases, and in first attempt, we are able to submit that solution. Okay. So this was the approach to the problem. This was the way we are going. Like it was quite an easy problem. Medium दे रखा है आपको. ठीक है. Easy थी. ठीक. And we did it. And we passed all the test cases. I hope जो अप्रोच आपको समझाया वो समझ में आया. उसमें कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो मेरे को एक बार बताओ. ठीक है. टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस. जो अप्रोच हमने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी ओवर हियर. We'll try to understand it once again. Any doubts? If it's all okay, we can close this session, right? And I hope you all got the answer. Chale. Thank you guys. Thank you very much. I hope you got the solution. If you still have any queries, please put them in the comment box and we'll try to answer them over there only. Okay? Chale. Thank you guys. Thank you very much. Let me finish up the stream over here.